सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। Hey everyone and welcome to Ash Movie Talkies। और आज हम बात करने वाले हैं The Monster Movie which is KGF Chapter 2। और यार ये जो रिव्यू होने वाला है this is going to be spoiler free but it's going to be very emotional because if you guys remember 2-3 साल पहले जब ये चैनल हमने शुरू किया था so I started this channel with the very first review of KGF Chapter 1। उस मूवी ने मेरे अंदर कुछ ऐसी हलचल मचा दी थी कि मुझे फिर अपना एक चैनल बनाना पड़ा and I started doing reviews। My emotions, my love for cinema was rekindled because of this movie। So many of my friends know मैंने बाल बढ़ा लिए थे। I started growing beard। पूरे टाइम उसको मैं करता रहा। I continued with that look in hope कि KGF Chapter 2 के लिए कुछ स्पेशल करूंगा। But then obviously the pandemic hit और उसके बाद ये सब problems, so I had to get rid of that entire grow। So but in anyways let's first revisit why KGF Chapter 1 was so refreshing, was such a monster hit and that put Kannada industry onto the India's map in terms of cinema। So सबसे पहली चीज जो ये है I have never ever seen such strong opening act of a movie। If you remember KGF Chapter 1 जब शुरू होती है it starts with Ramika Sen, the Prime Minister of India, invoking the army against Rocky being the most dreaded criminal India has ever seen। जब वो पूरा सीन शुरू होता है उसके साथ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है and the pace at which that scene goes, it is an awesome experience। और जिस बंदे ने KGF Chapter 1 थिएटर में देखी है उसके तो क्या ही कहने। So that entire movie KGF Chapter 1 was special in the sense because of its first of all cinematography which was brilliant, the background music which was amazing, theaters में literally goosebumps आ रहे थे, and the man of the moment यश का जो screen presence है I think probably is unrivaled। Nobody has that kind of charisma like Yash has on screen। So KGF Chapter 1 was a monumental hit and it was a monumental success in the sense वो जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड था सिनेमा में वो कहीं ना कहीं बाहुबली के बाद ब्रिज हो ही रहा था and then KGF came and literally broke the shackles। So KGF Chapter 1 in a nutshell was ground breaking और जो उसकी हाइप बनी उसके बाद we'll talk in the next section। Violence, violence, violence। Now let's talk about the hype of the movie। KGF Chapter 1 जब खत्म हुई जहां पर यश का जो कैरेक्टर रॉकी जब वो गरुड़ा को मारता है KGF में, उसके बाद we've been waiting कि अब Chapter 2 में क्या होने वाला है। पर ये हाइप इतनी ज्यादा क्यों हुई? The last time if I remember किसी मूवी की इतनी हाइप बनी थी तो वो मार्वल की स्पाइडरमैन नो वे होम थी। So can you imagine for the first time ever किसी मूवी की इतनी हाइप बन रही थी इंडिया में जो एक्चुअली बॉलीवुड से नहीं आ रही थी। इट केम फ्रॉम कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री और इसकी हाइप ऑलमोस्ट मार्वल की किसी मूवी के टाइप थी विच वॉज सरप्राइजिंगली प्लेजेंट। मैंने अपने पहले किसी रिव्यू में ये कहा भी था कि इंडियन ऑडियंस आर डाइंग टू गेट दैट मार्वल काइंड ऑफ मूवीज एंड द हाइप एंड SS राजमौली उनको हमें थैंक करना पड़ेगा बिकॉज ही स्टार्टेड दिस जॉनर। वो पहले बाहुबली लाए, ही ब्रॉट द एंटायर नेशन टुगेदर एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग कि एक मूवी के माध्यम से हम ये नॉर्थ साइड का डिवाइड खत्म कर पा रहे हैं एंड द एंटायर कंट्री इज कमिंग टुगेदर इनटू द थिएटर्स। और थिएटर्स में लिटरली सेम वही सीन्स आ रहे हैं जो हम 70s और 80s में देखते थे जहां पे विस्लिंग हो रही है, क्लैपिंग हो रही है, लोग एक साथ इमोशनल हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं कॉमन इमोशन पर। सो KGF Chapter 1 was truly in that sense the original the 70s kind of movie। So everyone connected to it और उसकी hype इतनी ज्यादा बन गई and then came KGF Chapter 2। ये हमेशा बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप जब सेकेंड पार्ट में लेके जाते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट डाउन होता है बट यू हैव टू गिव ऑल द क्रेडिट टू द डायरेक्टर प्रशांत नील जिन्होंने वो होने ही नहीं दिया। ऑब्वियसली काफी लोगों के लिए KGF Chapter 1 will still be their favorite movie out of these two। मेरे लिए भी पर्सनली I will prefer KGF Chapter 1 but you have to understand जब हम एक ऐसे जॉनर में जाते हैं जहां पर हम लोग एक वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हैं, एक फिक्शनल वर्ल्ड बना रहे हैं जहां पे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो जब आप उनकी जर्नी पे जाओगे तो ऑब्वियसली पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में कुछ डिफरेंसेस आएंगे।
तो जब आप उनको अकाउंट में लोगे, then you will enjoy KGF Chapter 2 even more. In the next section, we will talk about the stars, the cinematography, the BGM, and the direction of the movie. There will be no more tolerance. Now let's talk about the star cast of the movie. Movie के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बात करेंगे और सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे. तो let's start with the man of the moment, यश बॉस. क्या कमाल का स्क्रीन प्रेजेंस है. अक्सर ऐसे कैरेक्टर्स जो लार्जर देन लाइफ होते हैं, अगर आप उनको प्ले करो या फिर उनको देखो तो बहुत ही कैरिकेचरस टाइप के हो जाते हैं. जिसका प्राइम एग्जांपल है बॉलीवुड की घिसी पिटी मसाला मूवीज, जिनके अंदर आप किसी भी हीरो के अगर रोल को ले लो तो बहुत ही ज्यादा कैरिकेचरस हो जाता है. उसका कोई ऐसा सॉलिड रीजन नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, बस कुछ भी कर रहे हैं. बट हियर द मैन वॉज ऑन अ मिशन. ही वॉज अ कैरेक्टर ड्रिवन बाय अ रीजन, और वो रीजन थी अपनी मां को दिया हुआ वो एक वादा कि जब वो मरेगा तो दुनिया का सबसे ताकतवर और रईस इंसान बन के मरेगा. और इसके लिए वो मॉरली कोई कॉम्पस नहीं रख रहा है. ही विल डू एनीथिंग टू गेट दैट. आपको पता है कि ये कैरेक्टर ठीक नहीं है, बट यू आर स्टिल रूटिंग फॉर हिम बिकॉज उसका वो जो रीजन है, वो जो कोर इमोशन है, वो आपको कहीं ना कहीं टच करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं संजय दत्त की. एक सदियों के बाद संजय दत्त ने फाइनली एक बोन चिलिंग परफॉर्मेंस दिया है. अगर मैं बात करूं तो शायद खलनायक के बाद असली खलनायक वापस आया है. संजय दत्त वाज अ ट्रू एंटागोनिस्ट टू रॉकीज प्रोटैगनिस्ट. कमाल का एक्शन था उनका, बहुत ही सॉलिड और मेनेसिंग थे वो. बट फॉर मी द सरप्राइज वाज रवीना टंडन्स कैरेक्टर ऑफ रमिका सिंह. इफ देयर वाज वन कैरेक्टर who stood out in the entire movie apart from Yash Boss, it was रवीना टंडन. इतना खूबसूरत काम किया है, इतना कमाल का काम किया है कि कुछ शब्द ही नहीं है मेरे पास. बिकॉज बॉलीवुड ने उन्हें अब तक केवल इस तरह से यूज किया कि एक हीरो है और वो उनकी हीरोइन है, नाचना गाना हो गया और रोना धोना हो गया. बट फॉर द फर्स्ट टाइम शी शोज क्या कैलिबर है उनके पास एक्टिंग. दैट इज द स्ट्रेंथ. ऐसा काम करवाया. अब बात करते हैं प्रशांत नील की. क्या विजन है बॉस, क्या विजन है. पता नहीं क्या खा रहे हैं साउथ इंडस्ट्री वाले. पहले राजामौली सर और अब प्रशांत नील. कमाल का विजन है, और उसको स्क्रीन पे कितने तरीके से लाना है, उसकी स्टोरी टेलिंग की एबिलिटी कमाल है. आई डोंट सी एनीवन डूइंग दैट इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की. ऐसे ऐसे एस्थेटिक शॉट्स, इतने गजब के सेट्स बनाए हुए हैं. दिस इज, अब मैं ये भी नहीं बोलूंगा हॉलीवुड लेवल. व्हाई शुड आई कंपेयर विद हॉलीवुड लेवल? वी हैव आवर ओन फिल्म इंडस्ट्री एंड इट इज नो मोर कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, इट इज द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी. एंड देन लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हियर, व्हिच इज द बैकग्राउंड म्यूजिक. द बैकग्राउंड स्कोर केजीएफ चैप्टर 1 में जितना खतरनाक था, उतना ही खतरनाक केजीएफ चैप्टर 2 में है. और एक सिंपल मोमेंट को भी बीजीएम कैसे एलिवेट करता है, go watch this movie in theater and then you will understand. In the next segment, let's talk about what is wrong with the Hindi film industry or those special mentions which I want to tell you about in KGF chapter 3. घुस के मारेंगे. अब बात करते हैं उन दो खास मोमेंट्स की जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं. सबसे पहला, अगर आपने मार्वल मूवीज देखी हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं मिड क्रेडिट सीन्स और एंड क्रेडिट सीन्स. यानी कि जब मूवी खत्म हो जाती है उसके बाद जिसने उसमें काम किया है, जो सहयोग दिया है, उनका नाम आना शुरू होता है. तो थोड़े ही देर में एक सीन आएगा जिसको बोलते हैं मिड क्रेडिट सीन, और जब सारे क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो सीन आता है उसे बोलते हैं एंड क्रेडिट सीन्स. और ये काम करता है अगली मूवी को स्टेज देने का. वो आपको एक तरह से एक छोटा सा टीजर टाइप का दे देते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज ट्रूली होपिंग कि कुछ इसमें ऐसा हो, और हुआ. सो इट्स नॉट अ स्पॉइलर, इट इज आउट बाय नाउ. केजीएफ चैप्टर 3 इज ऑन द रोड्स. केजीएफ चैप्टर 3 बन रही है. क्या स्टोरी लाइन होगी, क्या यूनिवर्स एक्सपैंड होगा, वी डोंट नो. बट मिड क्रेडिट में वो सीन आया जहां पे केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में उन्होंने हल्की सी झलक दिखाई. एंड दिस हैपेंस ओनली इन मार्वल मूवीज. सो राइट नाउ वी आर गेटिंग आवर ओन यूनिवर्स. वी डोंट वांट सुपर हीरोज, वी हैव यश बॉस फॉर दैट. Anyways, and the second most important thing that I would like to talk about here is, if you've seen Batman, अगर आप बैटमैन के फैन हैं और नोलन की ट्रायलॉजी आपने देखी है, तो उसमें थर्ड मूवी जो है वो है डार्क नाइट राइजेस. तो जब फाइनली अधीरा का कैरेक्टर रॉकी के कैरेक्टर से फिल्म के क्लाइमैक्स में भिड़ता है और उनकी आर्मीज क्लैश कर रही हैं, आई लिटरली वेंट बैक इनटू द डार्क नाइट राइजेस. जब बेन अपनी फौज के साथ आता है और बैटमैन अपने पुलिसमैन फौज के साथ आता है, इट वॉज लाइक दैट. इतने ग्रैंड लेवल पे ये चीजें हो रही थी.
एंड देन देयर वाज वन पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई थी और मेरा माँ और मेरा हाथ ऐसे लगा हुआ था एंड शी फेल्ट गूज़बम्प्स ऑन माय हैंड्स। और वो जो सीन है ना, वो सीन तब आता है जब रॉकी पहली बार घायल होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इस पूरे यूनिवर्स में। उसका खून बहा है और उसको बहुत दर्द हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है और उसकी माँ उसके सपने में आती है और उसका हाथ थामती है। दैट मोमेंट गिव्स गूज़बम्प्स। ऐसे मोमेंट्स, ऐसे इतने कमाल के मोमेंट्स आप मसाला मूवीज में देख ही नहीं पाएंगे। एंड दिस इज नॉट अ मसाला मूवी, दिस इज हाउ अ फिल्म स्टोरी टेलिंग शुड बी। आप लोगों को, ऑडियंस को एक ऐसे यूनिवर्स में ले जाते हैं, एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं जहां इमोशंस वही ह्यूमन कोर वाले हैं, बट व्हाट दीस पीपल आर डूइंग ऑन स्क्रीन इज जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो। और जब आप वो करेक्ट कर जाते हो ना, यू ट्रांसेंड दैट बाउंड्री एंड दैट इज वेयर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज लैकिंग। दे आर लैकिंग इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स। वो वही घिसे पिटे नॉर्मल वो चल रहे हैं और अर्बन लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं। बट दिस इज व्हाट इंडिया इज, दिस इज व्हाट वी रिप्रेजेंट एंड वी शुड नॉट शाई अवे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिनेमा। सो फॉर मी, KGF Chapter 1 and KGF Chapter 2, along with SS Rajamouli sir's RRR and Bahubali, will be the top 3 movies that I've thoroughly enjoyed. I can't say any. I mean, मेरे को याद ही नहीं है लास्ट मूवी मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी इतनी एंजॉय की थी। और अगर मैं सही मायनों में बताऊं तो शायद मुझे अमिताभ बच्चन की मूवीज याद आए, जैसे दीवार, त्रिशूल, इस तरह की मूवीज। So in all, please go out, watch KGF Chapter 2. Don't watch it as a Kannada movie film. Watch it as an Indian film industry's movie. And this is where we are heading. This is the grand opus जहां पे अब हम 1000 करोड़ का बिजनेस करेंगे, अब हम 5000 करोड़ का बिजनेस करेंगे। वो बिजनेस करेंगे जो शायद इससे पहले केवल हॉलीवुड की मूवीज कर रही थी। Kudos to everyone who made this happen. And I'm keeping my fingers crossed कि हमें KGF Chapter 3 में वापस से यश बॉस मिले एंड सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट इनटू दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। थैंक यू गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब, कमेंट और प्लीज मुझे बताइए आपको मूवी कैसी लगी एंड इफ यू वांट एन इन डेप्थ एनालिसिस आई विल डू इट फॉर यू। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चीयर्स।